Good morning, students. So today we are going to discuss the memory management. So how the memory management works, and what do you mean by the memory management that we are going to discuss in this session. So this is a very new unit, and till now we have completed the process management and process synchronization unit. So this is all about a new unit. So basically, why there is a need of memory and what is the importance of memory that we are going to discuss in this chapter. Okay, memory, we all know that it is a very essential part in an operating system. चाहे वो कंप्यूटर हार्डवेयर हो, बट ऑब्वियस है कि वो कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट है. अगर हम बात करें तो वी नो दैट देयर इज अ मेन मेमोरी जिसको हम बोलते हैं रैम, और देयर इज अ सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम बोलते हैं स्टोरेज, या फिर एक कॉमन लैंग्वेज में मैं बात करूं तो उसको बोलते हैं हार्ड डिस्क. तो बेसिकली हमारे पास दो तरीके की मेमोरी होती है, एक तो मेन मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क होती है. एज वी ऑल नो दैट रैम इज अ नॉन वॉलेटाइल memory or a volatile, sorry, it is a volatile memory, which means that once the power is switched off, all the data is erased from the RAM. And secondary storage is nothing but your main hard disk is a non-volatile memory, so data will not be erased even if your power is off. So this is the very basic part of the memory, as you all know. And what is the role of memory management in the operating system, that we are going to see in the coming slides. So let's begin with the lecture. So this is the introductory part. So main memory refers to the physical memory, that is the internal memory to the computer. So basically main memory refers to the physical memory, that is the internal memory to the computer. So it is a internal memory. The word main is distinguish it from the external mass storage device such as disk drives. Main memory is also known as the RAM, as I have told you earlier. तो जो main memory होती है उसको हम RAM भी बोलते हैं. And I hope के if you have opened your CPU, then you are able to see the RAM, how it looks like. So it is just like a rectangular kind of chip. Okay, so that is a RAM. The RAM, the full form of RAM is the random access memory. The computer is available to change only data that is in main memory. Therefore, every program we execute and every file we access must be copied from the storage device into the main memory. तो जो भी see processor needs two things. One is the instruction, second is the data to execute the process or to execute the program. So there is mainly basically there are two parts. One is the instruction, second is the data. So all these things, all this information, the processor is required from the memory. So it fetch the information from the memory. So first of all, it looks into the RAM. वो सबसे पहले RAM की तरफ देखेगा. If it finds, then it will fetch the data and load it into the program counter. अगर वो वहां से नहीं मिलेगा तो डेटा कहाँ से लेगा, वो सेकेंडरी स्टोरेज से लेगा. तो इंफॉर्मेशन एंड डेटा इज नथिंग बट द वन ऑफ द सेम थिंग अभी के मामले में. अगर लेकिन मैं डेटा साइंस की बात करूंगा तो दैट इज प्लेज अ डिफरेंट काइंड ऑफ रोल. डेटा इज नथिंग बट अ फैक्ट. ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी एक फैक्ट है, तो उसी रिलेटेड मेरे को डेटा मिलेगा. तो ये बिल्कुल उसी तरीके से एग्जांपल है जैसे कि अगर मैं रियल टाइम में बात करूं कि लेट सपोज कि एक मेरी ऑफिस टेबल है, वो मेरी रैम है, और जो मेरा अलमीरा है ऑफिस में रखा हुआ है वो मेरा हार्ड डिस्क है. तो लेट सपोज कि मेरे को अब ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट लेना है, तो सबसे पहले मैं गैल्विन को अपनी टेबल पे सर्च करूंगा. तो ऑब्वियसली वो मेरे को मेरी टेबल पे नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने उसको लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था. सो आई मस्ट हैव स्टोर्ड इट इनटू द आई मस्ट हैव केप्ट इनटू द माय अलमीरा. तो मैं वहां पे जाऊंगा और अलमीरा में सर्च करूंगा. अब मैं जब अलमीरा में सर्च कर रहा हूँ तो जो मेरा एक्सेस टाइम है स्टूडेंट्स, तो वो मेरा ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू इफ आई सर्च माई बुक इनटू द टेबल. सो व्हाट आई विल डू इज मैं वहां से लूंगा बुक को और उसको रख दूंगा टेबल पे. So now my data is on the table. So I am the processor, table is the RAM, and the Almira is the hard disk. So in this way you can understand the concept of the main memory, secondary memory, and the processor. So next time whenever I need a operating system book, I don't have to look into the secondary storage. I'll
directly take that book from the table. So my access time will be reduced. So this is the concept of main memory and secondary storage. All the programs are loaded in the main memory for execution. Sometimes complete program is loaded, कभी पूरा program load होता है, कभी कुछ main function load होता है और उसके अलावा बाकी के जो functions हैं वो call upon होते हैं. So that is nothing but known as a dynamic loading. ठीक है, इससे क्या होता है, ओवरहेड कम होता है, पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो रैम में लोड नहीं होता. Also at the time one program is dependent on the other program. In such case, rather than loading all the dependent programs, CPU links the dependent program to the main executing program. कई बार क्या होता है कि कई प्रोग्राम्स एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं, तो वो क्या करता है प्रोसेसर और मैं कहूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि मेन प्रोग्राम को खाली लोड कर देता है और उससे लिंक जितने भी डिपेंडेंट प्रोग्राम्स हैं उनको वो जब भी उनकी जरूरत होती है उसको वो एग्जीक्यूट कर देता है. सो दैट मैकेनिज्म इज नोन एज द डायनेमिक लिंकिंग. So I hope that you understand the concept of dynamic loading and the dynamic linking. Now the question is why we use memory management. Why there is a need of memory management. See, students क्या होता है कि student user doesn't have a direct access to the hardware. ठीक है, अगर मैं उसको direct access hardware का दे दूंगा तो क्या होगा, मेरे पास बहुत chaos हो जाएगा. ये हम लोगों ने initial lectures में पढ़ा था, जो हमारे starting lectures थे उसमें पढ़ा था. Why there is a need of operating system. तो जो नीड ऑपरेटिंग सिस्टम की है वही चीज मेमोरी मैनेजमेंट में भी होगी. तो जब हार्डवेयर और यूजर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है तो उसमें क्या होगा कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का कंसेप्ट आ गया. तो बेसिकली क्या हुआ कि वो मैं आपको आगे भी समझाऊंगा. उसमें क्या हुआ कि लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस दो कंसेप्ट आएंगे. तो लॉजिकल एड्रेस क्या होते हैं, फिजिकल एड्रेस क्या होते हैं, दैट वी विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाई वी यूज मेमोरी मैनेजमेंट. It allows you to check how many memory needs to be allocated to the process that decide which processor should get a memory at what time. तो सबसे पहली चीज तो मेमोरी मैनेजमेंट है. तो सबसे पहले मैनेजमेंट उसका देखना होता है कब कौन से प्रोसेस को कौन सी मेमोरी एलोकेट हुई है, कौन सी फ्री हुई है और कितनी फ्री है मेरे पास, कितनी यूज्ड अभी मेमोरी है. वो सारा का सारा जो कौन है काम देखता है, मेमोरी मैनेजमेंट देखता है. ट्रैक व्हेनेवर इन्वेंटरी गेट्स फ्रीड एंड अनएलोकेटेड. तो जैसे ही प्रोसेस, आप लोगों को पता ही है, जब प्रोसेस क्रिएट होता है और जब प्रोसेस रनिंग स्टेट में होता है तो क्या होता है, उसको मेमोरी एलोकेट की जाती है. ठीक है, लेकिन जैसे ही प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा तो वो मेमोरी को फ्री कर देगा, अनएलोकेट कर देगा. तो उन सारी फ्री मेमोरीज का भी सारा का सारा ट्रैक रिकॉर्ड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट देखती है. इट एलोकेट्स द स्पेस टू द एप्लीकेशन रूटीन्स. ठीक है, तो जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, उन सबको मेमोरी एलोकेट करती है. It also makes sure that these applications do not interfere with each other. ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा ना हो कि मेमोरी मैनेजमेंट में जो एप्लीकेशन जो मेमोरी एलोकेट कर रही है, मेमोरी मैनेजमेंट, वो कहीं आपस में इंटरफेयर ना कर रहे हैं. तो इस वजह से उनको एक दूसरे से अलग रखने का काम कौन करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करती है. इट हेल्प्स प्रोटेक्ट डिफरेंट प्रोसेसेस फ्रॉम ईच अदर. It places the program in memory so that memory is utilized to its full extent. So these are the few points of the memory management. So this is the basic structure of the memory management. ठीक है, तो मैंने थ्रू डायग्राम आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो यहाँ पे क्या है, ये प्राइमरी मेमोरी है. प्राइमरी मेमोरी इज नथिंग बट योर रैम. दिस इज माय हार्ड डिस्क. और ये इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी विच इज नोन एज अ कैशे. ठीक है, आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें कैशे का कंसेप्ट आपको पता चलेगा. What do you mean by cache miss? What do you mean by cache hit? ठीक है, उससे आपका जो CPU का टर्न अराउंड टाइम है, CPU का जो एग्जीक्यूशन टाइम है, वो सारा का सारा कैलकुलेट होता है. तो यहाँ पे आपने देखा ये मेरा जो पार्ट है ये मेरा हार्डवेयर है और इस हार्डवेयर और ये इन एप्स को मैं कहूँगा यूजर. तो ये यहाँ पे यूजर बैठा हुआ है मेरा और यहाँ पे बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है और यही ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट योर MMU. MMU स्टैंड्स फॉर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट. ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट जो टेक्निक्स हैं उसमें कॉन्टिग्यूअस होता है, नॉन कॉन्टिग्यूअस होता है, फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम होती है और वेरिएबल पार्टीशन स्कीम होती है. ये क्या चीजें हैं वो अपन देखेंगे अभी आगे इन द कमिंग स्लाइड्स. अब मैं आपको सिखाता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय द लॉजिकल एड्रेस एंड द फिजिकल एड्रेस. तो दिस इज द स्ट्रक्चर. ठीक है, आई होप के यू हैव स्टडीड लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस इन योर माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट विच वाज इन योर थर्ड सेमेस्टर आई होप. ठीक है, एनीवेज मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ. नाउ लेट्स सपोज के मैंने यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल लिया. ठीक है, जो जिसका कि टाइप है इंटीजर.
So here is a variable which is a data which is an integer data type और इसकी let's suppose मैं वैल्यू देता हूँ 5. ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर मेमोरी लेआउट देखूंगा तो दिस इज माई नथिंग बट एक्स जिसकी वैल्यू है 5. ठीक है, और लेट सपोज कि इसका जो मेमोरी लोकेशन है वो मैं यही ले लेता हूँ 1024. ठीक है, so this 1024 is nothing but my logical address which is given by operating system. ठीक है, तो ये लॉजिकल एड्रेस होता है इसका, एक ये लॉजिकल होता है, कोई इसका फिजिकल एंटिटी कुछ नहीं होती है, ये खाली ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा जो है इसको जनरेट किया जाता है. अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी इसलिए जरूरत पड़ती है बिकॉज इट इज टुडेज वर्ल्ड ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. मैंने आपको बताया मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि एक टाइम में एक ही प्रोसेस जो होगा वो मेरा रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर वेटिंग इन द रेडी क्यू. तो उनको क्या होता है कि लॉजिकल एड्रेस देना होता है, क्योंकि अगर मैं सारे फिजिकल एड्रेस दे दूंगा बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ फिजिकल एड्रेसेस. ठीक है, अगर आज मैं रैम की बात करूं तो वो मेरे पास एट अराउंड 6 GB के अराउंड होगी. ठीक है, तो इसी वजह से लॉजिकल एड्रेस आता है. अब ये क्या होता है जब ये मैंने आप लोगों को कंपाइलेशन प्रोसेस बताया था, तो कंपाइलेशन प्रोसेस में आपको लिंकिंग और लोडिंग बताई थी. तो लिंकिंग के अंदर यही होता है कि जो ये एक फिजिकल रीलोकेशन रजिस्टर के साथ जुड़ता है, और लेट सपोज कि अगर उसका जो एड्रेस रीलोकेशन रजिस्टर का जो एड्रेस है वो 12,000 है, तो वो बन जाएगा आपका 13024. तो ये जो मेरा एड्रेस बन के आएगा ये मेरा फिजिकल एड्रेस कन्वर्ट होके आएगा. यहीं पे मैं यही चीज समझा रहा हूँ. सीपीयू ने एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया जिसका नाम है 346, जिसका नंबर है 346. ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के अंदर गया. मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के अंदर एक रीलोकेशन रजिस्टर होता है. वो क्या करता है, एक एड्रेस जनरेट करता है जो इस लॉजिकल एड्रेस के साथ एड्रेस एडअप होके क्या बनाता है, फिजिकल एड्रेस बनाता है. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 346 है, ये 14,000 इसका एड्रेस है रीलोकेशन रजिस्टर का. तो ये 14,000 प्लस 346 बन के एक फिजिकल एड्रेस जनरेट कर देगा, और वो जो डेटा होगा मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा. सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस. So logical address are generated by the CPU while the program is running. The logical address are nothing but the virtual address as it does not exist physically. Therefore, it is also known as virtual address. This address is used as a reference to access the physical memory location by CPU. ठीक है, इससे क्या होता है, CPU जो होता है physical memory को reference कर सकता है. The hardware device called the memory management unit is used for mapping logical address to its corresponding physical address. तो basically memory management unit का काम क्या होता है, logical address को physical address से map करना. Physical address identify a physical location of required data in a memory. The user never directly deals with the physical address but can access by its corresponding logical address. The user program generates the logical address and thinks that the program is running in the logical address, but the program needs physical memory for its execution. तो मैंने आपको बताया कि यूजर को एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है, उसको बताया जाता है कि देयर आर n नंबर ऑफ मेमोरी, लेकिन जब उसकी ओरिजिनली जब उसकी ग्राउंड लेवल पर जब उसकी मैपिंग होती है तो वो बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के थ्रू होती है और फिर फिजिकल एड्रेस जनरेट होता है. So therefore the logical address must be mapped by the physical address by MMU before they are used. The term physical address space is used for all physical addresses corresponding to the logical addresses in the logical address space. तो जो एड्रेस स्पेस फिजिकल में होते हैं उनको हम फिजिकल एड्रेस स्पेस बोलते हैं, और जो एड्रेस हमारे लॉजिकल होते हैं उनको हम लॉजिकल एड्रेस स्पेस बोलते हैं. ठीक है, so here is the concept of swapping. Swapping is a method in which a process should be swapped temporarily from the main memory to the backing store. ठीक है, तो एक सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट लिया जाता है जिसे हम वर्चुअल मेमोरी भी बोलते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे भी सही. तो वो पार्ट क्या करता है, एक बैकिंग स्टोर के लिए काम में आता है. तो जो भी डेटा मेरा मेन मेमोरी में ज्यादा टाइम तक यूज नहीं हो रहा है तो वो क्या होता है, स्वैप इन हो जाता है और वो सेकेंडरी मेमोरी के एक जो स्टोरेज बनाया हमने उसमें स्टोर हो जाता है, और जब उसकी जैसी जरूरत पड़ती है तो वो स्वैप आउट हो जाता है. तो बैकिंग स्टोरेज इज अ हार्ड डिस्क और सम अदर सेकेंडरी डेटा स्टोरेज डिवाइस दैट शुड बी big enough in order to accommodate copies of all memory images for all the user. It also capable for offering direct access to these memory images. ठीक है, so that is the concept of swapping. ठीक है, यहाँ पे मेन मेमोरी है, स्वैप इन स्वैप आउट हो रहा है. सो आई होप के यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट. तो अभी हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है, नेक्स्ट में हम इसका
आगे देखेंगे। थैंक यू।